নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, রাহুল গান্ধী যে কাজটা করেছেন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সেটাকে নিয়ে এই মুহূর্তে চর্চা চলছে এবং অবশ্যই চর্চা চলার মতোই বিষয়টা। তার কারণ 20 তারিখ অর্থাৎ 20 জুলাই আমাদের দেশে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা অমানবিক, শুধু তাই নয়, আধুনিক ভারতবর্ষে এই ধরনের ঘটনা আমরা মনে করতে পারি না। তার কারণ নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রী যারা দেশের পতাকা নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়েছিল, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে সঠিক করবার দাবিতে সেই জায়গায় সরাসরি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম প্যালেট গান চলেছিল, এবং সেই প্যালেট গান কে চালিয়েছিলেন, কার ডাইরেকশনে সেই প্যালেট গান চলেছিল, এটাকে নিয়ে রাহুল গান্ধী সম্পূর্ণ তিনি বিভিন্ন থানায় ঘোরেন এবং 8 ঘন্টা ধর্ণা দেন। 8 ঘন্টা ধর্ণা দেওয়ার পরবর্তীতে তিনি সেই রেজিস্টার করাতে পারেন এফআইআরটা। সাহিল লোচক যে ছেলেটি, যার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে প্যালেট গানের জন্য, সেই সম্পূর্ণ বিষয়টা তিনি তার যে ইউটিউব চ্যানেল সেখানে আপলোড করেছেন। আপনারা সম্পূর্ণটা দেখুন যে রাহুল গান্ধী কতটা স্ট্রাগল করে দেশের বিরোধী দলনেতা হয়ে তিনি সেই স্ট্রাগলটা করেছেন সাহিল লোচককে নিয়ে। এবং শেষ পর্যন্ত যখন এফআইআরটা হলো, তখন সাহিল লোচক বলছেন যে দেশের যুব সমাজের সঙ্গে দেশের এলওপি রয়েছেন এবং সেই জন্য দেশের যুব সমাজের লিডার হয়ে একদম সরাসরি ভয় না পেয়ে এগিয়ে আসা উচিত। প্রত্যেকটা মোমেন্ট আপনারা দেখুন যে থানার ভেতরে গিয়ে কিভাবে রাহুল গান্ধী কথা বলেছেন যে আপনারা কি এই আপনাদের দিল্লি পুলিশটা কি চালাচ্ছে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাহলে অমিত শাহের ছবি এখানে ঝুলছে কেন, দিল্লি পুলিশ থানার মধ্যে কেন ঝুলিয়ে রেখেছে অমিত শাহের ছবি, এই ধরনের কথা বলে যেমন কটাক্ষ করেছেন, ঠিক তেমন ভাবেই তিনি একদম সরাসরি মহিলা পুলিশ তাকে বলছেন যে আমাদের উপর ভরসা করুন না আপনারা। রাহুল গান্ধী বলছেন যে আমরা আপনাদের উপর ভরসা করি না বলেই এখানে এফআইআরটা রেজিস্টার করাতে এসেছি। একদম চোখে চোখ রেখে সহজ কথা, আমরা আপনাদের উপর ভরসা করি না, আপনারা আমাদের কেউ নন, তাই জন্য আমরা ভরসা করি না। আমি দেশের সংবিধানে বিশ্বাস করি, আইনে বিশ্বাস করি, তাই জন্য আমি এফআইআর করাতে এসেছি। একদম সহজ ভাবে তিনি যেভাবে লড়াইটা করলেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল। আপনারা দেখুন এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের বিরোধী দলনেতার কিভাবে সম্পূর্ণ স্ট্রাগলের মাধ্যমে তিনি এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের একটা অন্যতম একটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পিলার হয়ে উঠেছেন। সম্পূর্ণটা দেখুন এবং অবশ্যই স্কিপ না করে দেখুন, কারণ এই ধরনের ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না গণতন্ত্রে। এবং যে ঘটনাটা ঘটালেন সেটা অবশ্যই কিন্তু আগামীতে পরবর্তীতে সরকার বদলের একটা ডাক, সেখান থেকে সরকারকে ধাক্কা দেওয়ার একটা ডাক। এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই মুহূর্তে রাহুল গান্ধীর যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট, সেটা কিন্তু অনেকটা এই মুহূর্তে আলোচনায় উঠে এসেছে গত পরশুদিনের ঘটনার পর থেকে। আপনাদের মতামত দেখার অপেক্ষা রইলাম। অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবেন না আপনারা সম্পূর্ণ বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন। ধন্যবাদ। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री, अमित शाह एफआईआर फाइल ही नहीं कर। Why is Amit Shah not allowing an FIR to be filed? Why is he stopping an FIR from being filed? That is the journey today. We are going to force the Delhi police to file an FIR against the crime that was committed. ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट है, एम्स से आई है। ये इनकी आंख का डैमेज है, ये 3 छर्रे हैं इनकी आंख के बिल्कुल अंदर हैं। एम्स की रिपोर्ट कह रही है कि पैलेट गन का प्रयोग किया गया है। सरकार कह रही है कि कोई पैलेट गन नहीं चलाई गई, नो शॉट्स फायर्ड। सरकार के 3 बयान आए हैं, किरण रिजिजू का आया है, अमित शाह का आया है कि छर्रे चलाए ही नहीं गए हैं। तो ये पूरा सबूत है, मेडिकल सबूत है कि पैलेट गन चलाई गई। और पुलिस कहती है कि हम एफआईआर, ये पैलेट देख लीजिए अगर देखने हैं, तो पुलिस कहती है कि ये कभी हुआ ही नहीं, हम एफआईआर फाइल नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, ये भैया हैं पैलेट्स, इनके शरीर में से निकले हैं। उसमें तो सर आरटीआई में तो कह रहे हैं कि 10 लोगों को पैलेट लगी है, क्योंकि आए तो 3 ही सामने, 7 पता नहीं कहाँ नहीं। Any other students who got shot by pellet guns should not be scared. You should come out because it's important that people know what has happened to you. तो हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, इनके साथ अन्याय हुआ है, हम सिर्फ एफआईआर चाहते हैं। ये एफआईआर चाहते हैं, इनकी माताजी एफआईआर चाहते हैं, इनका परिवार चाहता है, हिंदुस्तान का हर स्टूडेंट चाहता है। पर मैं आपको बस सर धन्यवाद करना चाहूँगा जो भी आप नहीं, अभी तो मैंने काम ही नहीं किया है, अभी ठहर जाओ।
अभी तो शुरुआत है, आपको घबराना नहीं है। देखो हिंदुस्तान के युवा है ना जी उनको डरना नहीं है, किसी मैं- चीज से नहीं डरना, लाइफ से नहीं डरना, धमकी से नहीं डरना, जो होगा होगा जी सर बस इस अप्रोच से चलना है। जी आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके सामने सत्य है, जी। सत्य को दबाया जा रहा है, नहीं दबाने देंगे। जी बिल्कुल। आई वो शॉट बाय व्हेन आई वाज जब ये गोली चली है तब ये झंडा था इनके हाथ। बस यहाँ रोक लो भैया। नमस्कार, कैसे हैं जी आप? नमस्कार नमस्कार। ये भैया एफआईआर है, ये फाइल करना है, इनको छर्रे लगे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ आए थे, 14 इनकी माँ आई थी, ये आई थी, ये लॉयर है इनकी। ये जो प्रोटेस्ट में गोली चली थी उसमें इसको लगी है, तो ये एफआईआर फाइल करना चाहते हैं, तो ये कर दीजिए प्लीज। सर ये क्राइम ब्रांच में हो चुकी है क्या? नहीं सर नहीं हुई है। सर वी हैव गॉन टू क्राइम ब्रांच, उन्होंने बोला आपको कंप्लेंट इधर देनी पड़ेगी, यू कैन फॉरवर्ड इट टू द क्राइम ब्रांच, यू हैव टू टेक द कंप्लेंट एटलीस्ट। नहीं करिए करिए, जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए आप हमें इस पे एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ। परमिशन क्या लेनी है आपको? किससे परमिशन ले रहे हैं? कंप्लेंट तो हक है हाँ? नहीं इस चीज से। क्यों? अच्छा, बुलाइए बुलाइए। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? That is exactly what he did. हाँ? And SHO didn't turn up. I said sir कंप्लेंट मेरा हक है, आप लिख दीजिए, आप फॉरवर्ड कर दीजिए। और 0 FIR तो इनके नए लॉ में खुद में भी है, आप FIR भी कर दीजिए। चलिए FIR नहीं कीजिएगा तो एटलीस्ट कंप्लेंट टेक ऑन रिकॉर्ड, गिव मी अ रिसीविंग, यू हैव टेकन अ कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड। तो वंस वी हैव रिसीविंग देन At दैट इज least there is ओके। a case with the police and IO should be allotted after the complaint is taken on. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। So the IO has not been allotted, he has not been contacted through anybody. SHO even said आप पोस्ट कर दीजिए हमें, इंस्पेक्टर बाबूलाल was there. इनकी कंप्लेंट है, सुना है आपको 2-3 बार, मतलब यहाँ पे क्राइम में भेज दिए। ये कह रहे हैं कि यहाँ आए, आप पुलिस के लिए काम करते हो, बिल्कुल, तो आप एफआईआर क्यों नहीं लगाए? सर इनकी जो कंप्लेंट थी हमने बताया था कि आप आरकेपुरम जाके मैं क्राइम चली गई थी सर। लेकिन फिर इन्होंने कहा, ACP इन्होंने भारद्वाज लिखा ने बोला है कि पोस्ट करें, पोस्ट भी किया और ईमेल भी किया। So तो everything हमारे is पास done. पोस्ट आ गई, हम उसको ट्रांसफर कर आप दिया थ्रू एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रॉपर तो दे चैनल। दीजिए हमें। एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए। सर ये कितना हो गया हमें दे दीजिए। हाँ दैट विल बी डन, दैट इज इनफ। कंप्लेंट इज स्टैट्यूटरी ड्यूटी कि इनकी ड्यूटी है कि वो बस ठप्पा लगा के रिसीविंग और डायरी नंबर दे दें। तो रिसीविंग नहीं दे हाँ, रहे थे अगर आपको? झूठी कंप्लेंट भी होती तो भी रिसीविंग देनी होती। सर ये रेफरेंस नंबर है 816। वी विल टेक अ पिक्चर ऑफ इट। आयो का भी नंबर दे दीजिए जो अलॉटेड है इस पे। नहीं यहाँ पे अलॉटेड तो हमारे SHO साहब के सर through वो गई है। आप अभी हमारा डीसीपी ऑफिस गई है, डीसीपी ऑफिस से वहाँ जाएगी, तो डीसीपी ऑफिस से वहाँ पे फर्दर फॉरवर्डिंग लेटर बनेगा, फिर वो जाएगी सीपी ऑफिस। सर आई सीपी ऑफिस से जाएगी आई crime गेट branch। इट, आई गेट योर प्रोसीजर, पर 500 मीटर दूर डीसीपी ऑफिस में आप मेरे को आयो नहीं अलॉट कर पा रहे। आप आयो उसी टाइम अलॉट होता है। अलॉट तो वहाँ जाएगी जब होगा ना। कितना टाइम लगेगा जाने में? हम नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है? सर डीसीपी ऑफिस से जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, ये चलो सही वहाँ है, चलते हैं। हाँ जी। लेट्स गो देयर। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा हमने। आइए डीसीपी ऑफिस भेजा है। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं, ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा। They didn't give a receiving. That is his right. रिसीट, कंप्लेंट के लिए रिसीट देनी है, वो रिसीट नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं डीसीपी ऑफिस जाओ। The same इंस्पेक्टर बाबूलाल said पोस्ट से भेज दीजिए, हम नहीं रिसीविंग दे रहे। सो पोस्ट से तो भी अब हम भेज डीसीपी दिया। ऑफिस जा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था यही सेम और पर्सन। पहले ये पहले चिल्ला रहा था। मतलब अब भी भेज दिया हमें, तो मतलब अगर कोई लोकल आदमी मतलब आप imagine करो। तो उसके जी। साथ क्या सोचो अगर आप लीडर ऑपोजिशन आपके साथ बैठा है तब भगा रहे हैं आपको। So this is a complaint. हेलो, हाउ यू? सर कंप्लेंट है जो 14 अगस्त को हम आए थे, तो उन्होंने कहा आप पोस्ट से कर दीजिए। ACP भारद्वाज ने भी बोला, हमने पोस्ट की, 17 को आपको डिलीवर हुई है, 15 को मेरा ईमेल भी गया है। देयर हैज नॉट बीन एनी एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ दिस एंड दिस इज अ न्यू लेटर टू अस बाय अस सो दैट यू रिसीव आवर कंप्लेंट एंड गिव एन एक्नॉलेजमेंट एंड एन आईओ नंबर। आयो नंबर दे दीजिए प्लीज। दे देते सर, आइए ना डॉक्टर प्लीज दे देते। प्लीज मैं निकल जाता हूँ। ये नहीं चाहिए आपको, मैं बाहर चला जाता हूँ। ये कह रहे हैं इसको अलाउड नहीं है, मुझे अलाउड होगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ बाहर। नहीं, वीडियो बनाएंगे। ठीक है। Sir, Inspector Dinesh from Sansad Marg Police Station has been given the MLC of his from AIMS
because he has 2 MLCs. One I have from Lady Harding. So the other one they are not giving specifically saying कि या तो हम आयो देंगे हम कोर्ट में देंगे अगर आप मंगाएंगे. नहीं, बेसिकली MLC मिलता है सर. यू कैन नॉट डिनाई इफ द पेशेंट आस्क. Connect Mr. प्लीज Singhi. प्लीज. हमने MRD मेडिकल रिकॉर्ड्स वी हैव रिटन टू द MRD as well. No problem, we'll write again. Receiving, this is receiving. Just check the name and address. Sir, where is the IO number? I'm so sorry. आइए तो SHO असाइन करेंगे ना, आप मेरे को दिए. जी. SHO will assign the IO. बट एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मेरे पास है जो कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन ने बोला है कि आपको पहुंच चुका है, उस पे आईओ अलॉटेड है. कैन यू जस्ट चेक इफ द आईओ इज अलॉटेड इन दैट? कैन आई कैन टेल यू द एक्नॉलेजमेंट नंबर इफ यू कैन चेक दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर. वी गॉट द डायरी नंबर. आईओ है, दे हैव स्टिल नॉट गिवन. So should we just wait? They said that he is busy but he'll contact me and give me the IO. How long will he take? We'll have to ask. Ask him, ask him. सर वो कहाँ पर बिजी है आयो? इस नंबर इसके आप एक बार चेक तो कर लीजिए कौन है इसका. I'm happy to check for 10 hours, 20 hours, 30 hours. आपका आईओ चाहिए. मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ नहीं. जब तक हमें आयोग का नंबर नहीं मिला, जब तक हमें MLC नहीं मिला, यहाँ से तो मैं हट लिया. और हटाना है तो बाहर निकल जाता हूँ, बाहर बैठ जाता हूँ. You have to trust us also. I have been trusting, ma'am. No, we don't trust you. I have been Please trusting. trust us. No, we don't. Ma'am, I Please have been understand, trusting we don't you. It's trust not you. like You trust us, that is why you have come. No. We've not come here because we trust you. We don't trust you. That's why we've come here. नहीं तो गोली नहीं चलाई गई तो छाले दिखाओ. वो कैसे? अगर आपने गोली नहीं चलाई किसी और ने चलाई होगी. ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ. ये जो इनकी आंख गई है इसके बारे में हम FIR मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है. हाँ, तो you are not going to file an individual FIR on this man? If you are not, I'm telling you what's going to happen. नहीं मैं बता रहा हूँ आपको होगा तो आप समझ लो. I will go outside. I will sit there until the FIR is done. मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा. Whatever You decide. has to be legal, na, sir. It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया. Very simple. You are not doing it. Sir, Okay, let's go. Sir, 6 months. I'm going to sit there. You okay? Okay, let's go. इधर से क्या सुन. अमित शाह की पुलिस FIR दर्ज करो. अब मैं बैठा हूँ, आप रिलैक्स कीजिए, आप अपना काम कीजिए. मैं बैठा हूँ. अमित शाह चाहती हर भिजवा दो. LOP के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ. मेरे शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे, उसके बाद भी मेरी FIR को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर LOP मेरा साथ न देते तो. भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है. ये न्याय का पहला कदम है. केस लॉन्च हुआ है. हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए. अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है. बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है. अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है. और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया है. तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा.